یہ خاص طور پر پاکستان سے خصوصی اقتصادی زونز کے حصے سے ہیں۔ خیال یہ ہے کہ ان خصوصی اقتصادی زونز میں سرمایہ کاری کو راغب کیا جائے گا، جس سے پاکستان میں روزگار اور ہماری ترقی کی شرح کو بہتر بنانے میں مدد ملے گی۔ یہ ہمارے ملک کے لیے ایک بہت بڑی دولت ہے۔ پاکستان میں دنیا کی بہترین کھجوریں پیدا ہوتی ہیں اور پاکستان کھجوروں کی پیداوار اور برآمد کے شعبے میں قیادت کی صلاحیت رکھتا ہے۔ چینی اور پاکستانی ایروسپیس اہلکاروں نے مل کر کیسے کام کیا ہے؟ پاکستان کے 1R سیٹلائٹ منصوبے کے پیچھے کیا کہانیاں ہیں؟ ناظرین محترم، السلام علیکم۔ پروگرام پاک چائنا ایکسپریس میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی میزبان نسرین، اور ہمارے پاکستانی میزبان ڈاکٹر معاذ عوان صاحب بھی ہمارے ساتھ براہ راست موجود ہیں۔ پاکستان کی وزارت خزانہ کی جانب سے چند روز قبل جاری کردہ مالی سال 2021 کے معاشی سروے کی رپورٹ کے مطابق کووڈ-19 کے باوجود پاکستان کی معیشت میں بہتری کے آثار دکھائی دے رہے ہیں، اور رواں مالی سال میں معیشت میں 3.94% کا اضافہ ہوا ہے، جو مقررہ 2.1% کے ہدف سے کافی بڑھ گیا ہے۔ پاکستان کی معاشی بحالی کے پیچھے اصل محرک کیا ہے؟ ہماری رپورٹ دیکھیے۔ پاکستان کے وفاقی وزیر خزانہ شوکت ترین نے ایک پریس کانفرنس میں اقتصادی سروے جولائی سے مارچ تک میں معاشی استحکام اور جی ڈی پی میں 3.94% اضافہ ہوا ہے، جو مطلوبہ 2.1% کے ہدف سے نمایاں طور پر زیادہ ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق چین پاکستان آزاد تجارتی معاہدے کے فیز 2 پروٹوکول کے نفاذ سے پاکستان کی 313 بڑی برآمدی اشیاء کے لیے صفر ٹیرف مارکیٹ کی فراہمی بھی شامل ہے، اور پاکستان کی مینوفیکچرنگ انڈسٹری کی پیداوار بڑھانے اور برآمدات بڑھانے کے لیے بہت فروغ ملا ہے۔ زرعی شعبے میں خشک سالی اور ٹڈیوں کے تعاون کی وجہ سے خوراک کی پیداوار کے نقصانات کو ختم کیا گیا ہے۔ پودے لگانے کے رقبے میں توسیع کے بعد پاکستان میں گندم کی پیداوار میں مستقل اضافہ کیا گیا ہے۔ مطلب کنفرم ہو گیا کہ پیداوار جو ہے اٹ ول بی ابو 21 ملین ٹن پنجاب سے، 4.2-4.3 ملین ٹن کے پی سے اپنا سندھ سے ہو رہی ہے، کوئی آلموسٹ اراؤنڈ 1.3 کے لگ بھگ یہاں کے پی سے ہو رہی ہے، اور 1 ملین ٹن کے لگ بھگ وہاں سے ہو رہی ہے۔ سو بیسیکلی آپ بلوچستان سے صرف گندم ہی نہیں، دیگر فصلوں کی پیداوار نے بھی حالیہ برسوں میں نئی بلندیوں کو چھوا ہے۔ اس رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ پاکستان اور چین کے مابین زرعی تعاون نے پاکستان کی اناج کی پیداوار کو بڑھانے میں نمایاں مدد کی ہے۔ دال، آلو، مکئی، چاول، گندم اور چینی ریکارڈ پیداوار ہوئی ہے۔ زراعت کے علاوہ پاکستانی حکومت خصوصی صنعتی زونوں کی تعمیر پر بھی خصوصی توجہ دے کر اپنی صنعتی صلاحیتوں کو استعمال کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ مالی سال 2020-21 میں چین پاکستان اقتصادی راہداری کے فریم ورک کے تحت خصوصی اقتصادی زونوں کی تعمیر کے سلسلے میں چین اور پاکستان کے درمیان تعاون کو نمایاں طور پر گہرا اور تیز کیا گیا ہے۔ اس دوران پاکستان نے خصوصی اقتصادی زونوں کی تعمیر کے لیے 4 ارب روپے مختص کیے ہیں۔ یہ خاص طور پر پاکستان سے خصوصی اقتصادی زونز کے حصے سے ہیں۔ خیال یہ ہے کہ ان خصوصی اقتصادی زونز میں سرمایہ کاری کو راغب کیا جائے گا، جس سے پاکستان میں روزگار اور ہماری ترقی کی شرح کو بہتر بنانے میں مدد ملے گی۔ یہ ہمارے ملک کے لیے ایک بہت بڑی دولت ہے۔ رشکئی اسپیشل اکنامک زون، گوادر فری ٹریڈ زون، ہائر روبا اکنامک زون اور چیلنج ٹیکسٹائل انڈسٹریل پارک کی تعمیر کا اہتمام منظم انداز میں جاری ہے، جس سے باہمی صنعتی تعاون کو مضبوط تقویت ملی ہے۔ اس وقت اقتصادی زون میں بیشتر انٹرپرائزز چینی کاروباری ادارے ہیں۔ مزید کاروباروں کو راغب کرنا پاکستان میں معاشی زون کی کامیابی کی کلید ثابت ہوگا۔ تو ایک تو یہ زمین کی فراہمی کرتے ہیں۔ پاکستان کی حکومت کے لیے میری جو سجیشن تھی اور اب بھی ہے کہ ہم اس میں جو انسینٹیو پیکیج کی بجائے، وہ تو ہے ہی ہے کہ آپ کو ٹیکس کی چھوٹ ہے، آپ کو کچھ چیزیں سستی مل جاتی ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم اویلیبلٹی آف سروسز کو انشور کریں، پانی، بجلی، گیس، ریگولیشن، بینکنگ، تاکہ کسی کو باہر جانے کی ضرورت نہ پڑے، تو پھر بزنس تیزی سے ڈیولپ ہوتا ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اس وبا کے باوجود پاکستان کی معاشی بحالی ٹھوس اور پائیدار ہے۔
नाजरीन, इस मौजू पर मज़ीद बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ दो पाकिस्तानी माहिरीन बराह रास्त मौजूद हैं। वो हैं जनाब शान सईद साहब जो कि चीफ इकोनॉमिस्ट एट जुवाई IQI, और जनाब सैयद महमूद बुखारी साहब जो कि ऑल पाकिस्तान फार्मर्स फाउंडेशन के चेयरमैन हैं। जनाब महमूद बुखारी साहब, आप चूँकि फार्मर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, तो ज़राअत में गंदम और मकई की पैदावार भी नई ऊंचाइयों पर पहुंच चुकी है, लेकिन अब भी पाकिस्तान को गंदम दरामद करने की ज़रूरत है। तो आपका इस बारे में क्या ख्याल है और मुस्तकबिल में ज़राअत की तरक्की किस सिमत में होनी चाहिए? बुनियादी तौर पर जो पाकिस्तान के अंदर मसाइल हैं कि इसको गंदम को होल्ड किया जाता है और उसकी वजह से ये मसाइल पैदा होते हैं। दूसरी बात ये है कि आपके पास बीज जो है वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी नहीं है। दुनिया में गंदम की पैदावार कहीं ज़्यादा है बनिस्बत पाकिस्तान के, और हम समझते हैं कि अगर जितने एकड़ अब 2 करोड़ और 70 लाख एकड़ के ऊपर जो है वो गंदम काश्त होती है, और हम जो हमारी ज़रूरत है पाकिस्तान की वो 2 करोड़ 60 लाख टन, और उसमें 35 लाख टन जो है वो बीज के निकल जाते हैं। राइट, अब ये होता है कि जब एक इनपुट्स महंगी हैं, इनपुट्स महंगी होने की वजह से किसान जो है वो उस पे उस तरह से खाद का इस्तेमाल DAP का नहीं करता, और इस वजह से वो फिर पैदावार में कमी आती है। मैं समझता हूँ कि अगर 2 करोड़ 70 लाख एकड़ जो है वो गंदम काश्त हुई, और उस पे अगर सही मायनों में आप DAP 2 बोरी DAP डालें तो उसकी पैदावार बढ़ जाएगी। जी शान सईद साहब, मेरा सवाल ये है कि हमने देखा है कि माली साल 2021 की पहली 3 छमाहियों में पाकिस्तान में जो बड़े पैमाने पर मैन्युफैक्चरिंग की शरह नमू है 8.9% तक जा पहुंची है, जो सन 2007 के बाद ये एक न्यू रिकॉर्ड है। तो आपके ख्याल में पाकिस्तान में मैन्युफैक्चरिंग की इस सनत की इतनी बड़ी तरक्की की बुनियादी वजूहात क्या हैं? पाकिस्तान की मैन्युफैक्चरिंग बढ़ने की बेसिक वजह यह है कि पाकिस्तान ने अपनी इकोनॉमी को ड्यूरिंग लॉकडाउन बंद नहीं किया, और गवर्नमेंट की जो कंसिस्टेंट पॉलिसीज की वजह से कि दूसरी दुनिया बंद थी, यूरोप और नॉर्थ अमेरिका, हमारी इकोनॉमी ने खुला रख के एक्सपोर्ट ऑर्डर्स जो हैं वो कैप्चर किए, जिसकी वजह से हमारे एक्सपोर्टर्स और हमारे मैन्युफैक्चरर्स को फायदा हुआ। दूसरा ये कि जो पॉलिसी है ईस्ट की गवर्नमेंट की, वो बड़ी एक स्ट्रेटेजिक है, क्योंकि गेम जो है इस वक्त ईस्ट में जा रहा है, सारी दुनिया ईस्ट की तरफ है, और पाकिस्तान की जो पोजीशन है, पिवट जो है चाइना की तरफ, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता है चाइना वन ऑफ द लार्जेस्ट मार्केट ऑफ द वर्ल्ड, 1.4 बिलियन पीपल, तो हर कोई उस मार्केट को कैप्चर करना चाह रहा है। तो इस वजह से पाकिस्तान की एक कंसिस्टेंट पॉलिसी, स्मार्ट मूव बाय प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, और हमारे एक्सपोर्टर्स ने राइट टाइम पे, कोविड की जब दूसरी इकोनॉमीज लॉकडाउन थी, हमारे एक्सपोर्टर्स ने उसको कैप्चर किया। इसकी वजह से हमारे मैन्युफैक्चरिंग में एक एप्रिशिएबल अपसर्ज आया। नाजरीन, पाकिस्तान में दुनिया की बेहतरीन खजूर पैदा होती है और खजूर बरामद करने वाला बड़ा मुल्क बनने का इम्कान भी है। तफसीलात के लिए हमारी रिपोर्ट देखिए। खजूर पाकिस्तान की तीसरी बड़ी फसल है जो मुल्क के 4 सूबों में पाई जाती है। पाकिस्तान में दुनिया की बेहतरीन खजूरें पैदा होती हैं और पाकिस्तान खजूरों की पैदावार और बरामद के शोबे में क़यादत की सलाहियत रखता है। यहाँ की खजूर बहुत अच्छी होती है, और पहले से ये कि दाम भी अभी कम है, और ये खजूर हैं, ये ईरानी खजूर है, ये मेरी फेवरेट खजूर और बहुत अच्छी भी है। पहले ये 450-500 रुपये किलो बिकती थी, अब ये 250-300 रुपये तक आ गई है। और खजूर ये खाने में बहुत अच्छी है। इसके अलावा खुश्क खजूरें भी आती है, बहुत से ऐसी आती है कि कोई ईरानी होती है, कहीं पाकिस्तानी भी होती हैं। ग्राहक जब मतलब वो यही वाला ईरानी मुज़ाफ़ती खजूर ज़्यादा इस्तेमाल करे, जो नरम वाला है, छोटा डब्बी में भी आता है, और लूज काटन में ईरानी मुज़ाफ़ती। ये यहाँ पर मतलब
ग्राहक ज़्यादा ये पसंद कर रहे हैं, मतलब 100 से 80% ग्राहक ये ले जाते हैं। असील खजूरों का बादशाह सबसे बेस्ट वही है, और ज़्यादा भी 90% 90% वही खजूर की पैदावार होती है असील की। दक्की खुश्क, शरीफा, मजावती, कपरू, हलावा, असील और रब्बी वगैरह जैसी खजूर की 300 से ज़्यादा किस्मों के साथ पाकिस्तान दुनिया में खजूरों की पैदावार में 6ठे नंबर पर है। तकरीबन 4-5 किस्म है, 2-3 किस्म असील का होता है। 1 नंबर 2 नंबर 1 नंबर की होती है 10,000 रुपया केजी मन का चलता है, 2 नंबर का चलता है 8,000, तीसरे नंबर का चलता है 5,000, चौथे नंबर का चलता है 2,000 रुपया। कोई कोपरा खजूर होती है, कि करबला खजूर होता है, कोई टोटा खजूर होता है, कोई बसरा खजूर होता है। सबसे बेस्ट जो है असीली खजूर है, जो इसमें ताकत भी ज़्यादा है, विटामिन ज़्यादा है और ज़्यादा टाइम चलती है, उसमें ख़राबी कम होती है। खजूर फरोश का कहना है कि पाकिस्तान में बहुत सी किस्म की खजूरें हैं और अगर इनको सही तरीके से महफूज किया जाए तो इनकी शेल्फ लाइफ निस्बतन तवील हो सकती है। गोश्त स्टोर में रखना चाहिए, गोश्त स्टोर में रखना चाहिए। हमारे पास खजूर हम जब वहाँ से लाते ये ईरान से, तो इधर हम लोग स्टोर में रखते तकरीबन सालों तक पड़े होते, खजूर ख़राब नहीं होते। 3 साल तक रखो, 6 रख दो, 5 रख दो, कुछ नहीं होता। हाँ, खजूर का नुकसान चीज़ क्या है? पानी है, 1 मिनट में ख़राब कर रहे हैं। मार्केट तक रसाई इन मसाइल में से एक है जो किसानों को बड़े पैमाने पर खजूरों की काश्त की हौसला शिकनी करती है। खजूरें ज़्यादातर दूर दराज के मुज़ाफ़ाती इलाकों में उगाई जाती हैं। राब्ते की दुश्वारियों, मुनासिब ज़रई मशीनरी और प्रोसेसिंग यूनिटों की कमी की वजह से अभी मतलूबा नताइज हासिल नहीं हो सके। इसके जो नोड होता है ना, नोड, इस पे खजूर पे हम जाते हैं, उधर बहुत रक्स है, बहुत रक्स है, मुश्किलात है। ये मशीन हो जाती है ना हमारे को, वो कुछ सुकून हो जाएगा। इसका जब ये लाल हो जाती है, फिर डंग हो जाते हैं, पक जाती है जुलाई के 7 महीने में, 7वां महीने में, फिर उसमें आराम से उसको एक एक दाना करके उतारते हैं, फिर उसको धूप पे सुखाते हैं 3-4 दिन के बाद, फिर उसकी पैकिंग करके फिर बड़ी मंडियों में ले जाते हैं, लाहौर, खैरपुर, सखर ऐसे ले जाते हैं। सी पैक के तहत नई तामीर शुदा मोटरवेज किसानों के लिए खजूर की मार्केट को काबिल रसाई बना रही हैं और मुल्क के दूर दराज इलाकों में अपने फार्मों के लिए जदीद मशीनें और काश्तकारी के लिए जदीद आलात लाने में उनके लिए मददगार हैं। ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान TDAP के मुताबिक सालाना तकरीबन 5,40,000 टन पैदावार के साथ 99,000 हेक्टर रकबे पर खजूरें काश्त की जाती हैं। यहाँ पूरे पाकिस्तान से खजूरें आती है, खैरपुर, सखर, डेरा इस्माइल खान, पंजगुर, दुर्बाजमान। इसके अलावा इंपोर्ट होती है ईरान से, इराक से, दुबई से, सऊदी अरब से। ये तमाम खजूरें यहाँ आती हैं और सबसे ज़्यादा खजूरें शाबान के आखिरी 10 दिनों में बिकती है, यानी कि 20 शाबान से 1 रमज़ान तक। क्योंकि हर एक आदमी को अपने डोर स्टेप पे खजूर चाहिए होती है, तो उसकी कोशिश ये होती है कि 15 शाबान के बाद वो ख़रीदारी करके अपने अपने सिटीज़ में माल लेके चले जाते हैं। ये शाबान में होती है, 15 शाबान से 1 रमज़ान तक खजूर जो है ना पीक सीज़न होता है। खजूर जो है वो चीन भी जाती है, पर वो इतने तादाद में नहीं जा रही है जितने तादाद में होनी चाहिए। हम तक को इतना उधर फैसिलिटी हमें मिलनी चाहिए, जो हम उधर जाएं, वो अपनी जो क्वालिटी है वो उधर अपने स्टॉल लगाएं, अपनी क्वालिटी को मुतारफ़ कराएं, तो भाई ये हमारी क्वालिटी है। देखो चीन का बहुत बड़ा मार्केट है, अगर हमें वो मिल जाए, सही तरीके से मिल जाए, उसको बात समझ में आ जाए, तो भाई ये चीज़ हमारे काम की है, तो फिर तो हमारे लिए हर चीज़ सही है। फैसलाबाद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के साबिक वाइस चांसलर डॉक्टर इकरार अहमद खान ने हालिया चीन पाकिस्तान एग्रीकल्चर वेबिनार में बताया कि पाकिस्तान में खजूर के इकनॉमिक रिटर्न की शरह आम के मुकाबले में ज़्यादा है। चीन एक काबिल दरियाफ्त बड़ी सार्फ मार्केट है। चाइना कस्टम के आदादोशुमार के मुताबिक जनवरी से दिसंबर 2019 तक चीन ने 1195.68 टन ताज़ा या खुश्क खजूरें दरामद की, जिसकी मालियत 6.26 मिलियन अमरीकी डॉलर है। ये तादाद सन 2015 से साल ब साल बढ़ती जा रही है। वेबिनार के एक और स्पीकर चाइनीज एकेडमी ऑफ ट्रॉपिकल एग्रीकल्चर साइंस कोकोनट रिसर्च इंस्टीट्यूट के डॉक्टर थांग मिनमिन ने कहा कि पाकिस्तान में पौधे लगाने का डेटाबेस कायम किया गया है और कुछ मसनूआत जैसे खजूर का गूदा तैयार किया गया है।
नाज़रीन, इस मौजू पर मज़ीद बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ दो पाकिस्तानी माहिरीन बराह रास्त मौजूद हैं। वो हैं जनाब शान सईद साहब जो कि चीफ इकोनॉमिस्ट एट जुवाई IQI और जनाब शमसुल इस्लाम साहब जो कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। खजूर की पैदावार के मैदान में चीन और पाकिस्तान के माबैन तावन के मुमकिन तरीके कौन से हैं, जैसे चीन से मशीनें और टेक्नोलॉजी लाना या चीन के साथ जॉइंट वेंचर्स में शरीक होना? मेरा ख्याल है जो चीन के साथ जॉइंट वेंचर अगर हम करें तो वो ज्यादा है, अच्छा है, क्योंकि उनके फार्मर्स अगर यहाँ पर आए, हमारी सॉइल को देखें, मेरा ख्याल है कि उनके फार्मर्स हमारे फार्मर्स से काफी ज्यादा आगे हैं इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी, इन टर्म्स ऑफ स्किल सेट, इन टर्म्स ऑफ यील्ड प्रोडक्शन। इस वक्त जो बेसिक पाकिस्तान का चैलेंज है वो किस तरह है कि अपनी यील्ड्स इंप्रूव करें। यील्ड जब इंप्रूव होंगी, फार्मर को खुशहाली आएगी, वो उस पर ज्यादा पैसा लगाएगा, वो ज्यादा इन्वेस्ट करेगा। इस वक्त फार्मर का ये है कि वो बिल्कुल हैंड टू माउथ चल रहा है, जो वो इन्वेस्ट करता है वही उसको रिटर्न आता है, उसको ज्यादा रिटर्न नहीं आता। तो वो जो फोकस है वो कभी खजूर से कॉटन में चला जाता है, कॉटन से शुगर केन में चला जाता है, शुगर केन से वो प्याज में चला जाता है। तो जिस चीज में आपकी स्किल सेट है, जिस चीज में आपकी महारत है, उस फार्मर को उसी एरिया में फोकस रखना चाहिए। तो खजूरों की डी प्रोसेसिंग कैसे की जाए और इसके प्रोडक्ट्स को चीनी मार्केट में कैसे इंट्रोड्यूस करवाया जाए? जो डेट है ये सीजनल क्रॉप होती है, लेकिन इसका पूरे साल इस्तेमाल किया जा सकता है। ये बड़ा हेल्दी सोर्स है फाइबर का और इसमें कोलेस्ट्रॉल को कम करने की वो सलाहियत होती है। तो इस अगर डेट को मैकेनाइज तरीके से प्रोसेसिंग करके इसकी ड्राई करके हम इसको प्रिजर्व करके इसको एक्सपोर्ट करें तो एज अ होल फ्रूट भी एक्सपोर्ट हो सकता है। फिर इसको पिटेड डेट्स बना के और इसको चॉकलेट की तरह के रैपर बना के उसमें पैक करें कंज्यूमर पैकिंग में डेट्स केक की तरह, तो वो भी एक्सपोर्ट होगा। फिर इसका सिरप जो है वो कंज्यूमर फॉर्म में छोटे पैक्स में आप उसको सिरप बना के इसको यहाँ पाकिस्तान में कुछ क्वांटिटी में सिरप बन के एक्सपोर्ट भी हुआ है। लेकिन अगर मॉडर्न टेक्नोलॉजी का कॉम्बिनेशन और ट्रेडिशनल वैरायटी के साथ होता है तो आई कैन अश्योर यू दैट पाकिस्तान जो एक बहुत बड़ी चाइना की मार्केट को हिसाब ना ले सकता। नाज़रीन, हाल ही में चीन का शंजो 12 इंसान बरदार खलाई जहाज़ 3 खलाबाजों के साथ कामयाबी के साथ लॉन्च किया गया। मौजूदा खलाई मिशन चीन की तारीख में 19वां खलाई मिशन है, जबकि खलाई स्टेशन की तामीर के मरहले में पहला इंसान बरदार मिशन है। 1 माह का अरसा गुजर चुका है। खलाई स्टेशन में खलाबाजों की ज़िंदगी कैसी है और एरोस्पेस के मैदान में चीन और पाकिस्तान किस तरह तावन कर सकते हैं, हमारी रिपोर्ट देखिए। चीन ने इंसान बरदार शंचो 12 खलाई जहाज के अजरा के साथ खुद तरक्की याफ्ता खलाई स्टेशन के मरहले में अपना पहला इंसान बरदार खलाई मिशन कामयाबी के साथ मुकम्मल किया है, जिससे ये जाहिर होता है कि चीन की एरोस्पेस और हवाबाजी की सनत दुनिया की सफ़े अव्वल की सतह पर पहुंच चुकी है। खलाई शोबे में चीन पाकिस्तान ताउन के बारे में बात करते हुए पाकिस्तान के 1R सैटेलाइट मंसूबे के पीछे एक कहानी भी है। सैटेलाइट लॉन्च करने के बाद जब हमारे अमले में से कुछ अफराद पाकिस्तान के दौरे पर गए तो पाकिस्तानी साथियों ने उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया और यहाँ तक के शादी की तकरीब में भी मदऊ किया। कामयाब आगाज़ के बारे में हर कोई पुरजोश था। ये चीन और पाकिस्तान के माबैन सिफारती ताल्लुकात के क़याम का तोहफा है। पाकिस्तान के मवासलाती सैटेलाइट 1R को 12 मार्च 2011 को लॉन्ग मार्च 3B रॉकेट के जरिए कामयाबी के साथ लॉन्च किया गया था। मदार में बदलाव और मदार के टेस्ट के बाद ये बिल आखिर 38 डिग्री मशरक तूल बल्द की मदारी पोजीशन पर तय हुआ था। सैटेलाइट की कारकर्दगी मुस्तहकम है और इसकी हालत नॉर्मल है। इस अमल से पाकिस्तान में टेली मवासलात, नशरियात, ब्रॉडबैंड, मल्टीमीडिया खिदमात, फासलाती तालीम और टेली मेडिसिन को फ़रोग मिलेगा। दूर दराज इलाकों को फ़ायदा पहुँचेगा, मुआशरती तरक्की और मुआशी तरक्की को फ़रोग मिलेगा और सैटेलाइट एप्लीकेशंस, ज़मीनी मवासलात, टेली मवासलात, नेटवर्क और मुतल्लिका शोबों में मुआशी खुशहाली की तरक्की लाएगा। ये कामयाबी चीनी और पाकिस्तानी खलाबाजों की मेहनत और लगन के बगैर हासिल नहीं की जा सकती। हम सैटेलाइट की मजमूई तरक्की के जिम्मेदार हैं। इसके साथ साथ सैटेलाइट पर पाकिस्तानी टीम का अपना तैयार करदा कुछ सामान भी मौजूद है। हम तकनीकी तौर पर उनकी मसनूआत की डेवलपमेंट चेक करते हैं ताकि यकीनी बनाया जा सके कि उनकी मसनूआत
मदार में ठीक काम कर सकती हैं। हमने पाकिस्तान में ज़मीनी सहूलियात की तामीर में भी मदद फराहम की है, जिसमें अहलकारों की कोर्स के ज़रिए और साइट पर एक साथ मिलकर तालीम व तरबियत शामिल है, ताकि वो जल्द अज जल्द सैटेलाइट की सूरत हाल से वाकिफ़ हो सकें, और इसने मुस्तकबिल में उनके अपने सैटेलाइट्स की डेवलपमेंट की बुनियाद रखी। वही चियांग ने पाकसेट 1R मंसूबे में चीन पाकिस्तान तावन के इब्तदाई तासुर के बारे में बताया। चीन और पाकिस्तान के दरमियान खलाई टेक्नोलॉजी के ताउन की एक लंबी तारीख है। पाकिस्तानी कौम चीनी अवाम के साथ बहुत दोस्ताना ताल्लुक़ रखती है, लिहाजा हमारे ख्याल में उनके लिए सैटेलाइट तामीर करना एक बहुत बड़ा एजाज़ है, और हमें चीन और पाकिस्तान के माबैन दोस्ती में अपना किरदार अदा करने पर भी बहुत फ़ख्र है। पाकिस्तान के 1R सैटेलाइट प्रोजेक्ट में मुश्किलात और सख्त डेडलाइन का सामना करते हुए चीनी और पाकिस्तानी इंजीनियरों ने तरक्की और तहकीक के दौरानिए में इंतहाई ज़्यादा काम किया। ये मंसूबा तकनीकी तौर पर मुश्किल था और वक्त बहुत कम था। हमने इस मंसूबे की तकमील के लिए बहुत कुर्बानी दी। लॉन्चिंग के मुकर्रर वक्त के मुताबिक इसको मुकम्मल करने के लिए हमने दिन रात काम किया। हमारे लिए ये आम था कि हमने 10 घंटे से ज़्यादा हर रोज़ काम किया। हमने मंसूबे की तरक्की को यकीनी बनाने के लिए दिन में 2 से 3 शिफ्टों में काम किया। ना सिर्फ हमारे सैटेलाइट की डेवलपमेंट के अहलकार, बल्कि पाकिस्तानी मंसूबे के अहलकार और निगरानी के माहिरीन भी बहुत मेहनत कर रहे थे। तमाम लोगों पर शदीद जिस्मानी और ज़हनी दबाव था। काम की शिद्दत और दोनों ममालिक के माबैन मुख्तलिफ सकाफ़तों के सबब इब्तदाई बाहमी तावन के साथ तहकीक और तरक्की के अमल में ज़्यादा काम का दौरानिया पाकिस्तानी टीम के लिए तशवीश का बायस बनी। सैटेलाइट की तरक्की के मयार को यकीनी बनाने के लिए पाकिस्तानी फरीक को ओवर टाइम काम करने के बारे में कुछ खदशात लाहक थे, जैसे कि खदशा था कि अहलकारों की थकावट की वजह से सैटेलाइट का मयार मुतासिर होगा। लिहाजा शुरू में उन्होंने इस बुनियाद पर हमारे ग्रुप को शिकायत का ख़त भेजा कि ओवर टाइम के औकात बहुत ज़्यादा हैं। हम उनकी तशवीश को समझते हैं, लेकिन इस मंसूबे की पेश रफ्त को यकीनी बनाने के लिए बहसियत चीनी खलाई अहलकार, लिहाजा हमने अभी भी अपने मंसूबे के मुताबिक काम किया ताकि इस मंसूबे की तकमील को यकीनी बनाया जा सके। दोनों फरीकों की मुस्तकिल मिजाजी के दौरान बाहमी एतमाद और अफाम तफहीम में इजाफा हुआ है। बार बार मुआसलात और मुखलिसाना वजात के बाद पाकिस्तानी फरीक को आहिस्ता आहिस्ता चीन की सूरत हाल का इदराक हासिल हो गया और चीनी टीम ने पाकिस्तानी माहिरीन के सोचने के अंदाज को आहिस्ता आहिस्ता समझा। आखिर में दोनों फरीक एक मुआहदे पर पहुंचे। मंसूबे के पूरे तरक्याती अमल में पाकिस्तानी अमला बशमूल प्रोजेक्ट लीडर, प्रोजेक्ट मैनेजर और प्रोजेक्ट टीम इस मंसूबे की टेक्नोलॉजी के बारे में बहुत संजीदा था। ये बहुत मेहनती और इस मंसूबे के लिए बहुत जिम्मेदार लोग थे, क्योंकि ये उनके मुल्क का मंसूबा था जिसकी वजह से उन पर बहुत दबाव था। पाकिस्तानी सैटेलाइट की एक जैसी तरक्की को यकीनी बनाने के लिए पाकिस्तान ने एक पेशावर तामीराती टीम को भी मदऊ किया। हर ज़ैली निज़ाम और हर जुज़ की तरक्की की पेशरफ्त की एहतियात से जांच पड़ताल की गई। इस मंसूबे को शेड्यूल के मुताबिक मुकम्मल होने के बाद सैटेलाइट अब करीब 10 सालों से मदार में है और अब भी मुस्तहकम हालत में है। पाकसेट 1R एशियन सार्फिन को चीन की पहली मदार में तरसील है और चीन और पाकिस्तान के माबैन खलाई शोबे में दूसरा ताउन, जबकि पाकिस्तान के पहले कम मदार मसनूई सियारा BADR-A को 1990 में लॉन्ग मार्च 2E रॉकेट के जरिए लॉन्च किया गया था। मुस्तकबिल में चीन और पाकिस्तान खलाई मैदान में मजीद इम्कानात तलाश करेंगे। हम न सिर्फ पाकिस्तान को मसनूआत बल्कि अपनी टेक्नोलॉजी भी फराहम करते हैं। हम उनको तरबियत देते हैं, उन्हें तरक्याती अमल में हिस्सा लेने का मौका देते हैं ताकि इस मंसूबे में मजीद गहराई से शामिल हो सकें। लिहाजा वो सैटेलाइट की डेवलपमेंट में मजीद मालूमात और तजर्बा भी सीख लेंगे ताकि वो मुस्तकबिल में अपनी एरोस्पेस मसनूआत की डेवलपमेंट के लिए जितनी जल्दी मुमकिन हो आज़ादाना तरक्की के हदफ को पूरा कर सकें। बेल्ट एंड रोड की तामीर भी पाकिस्तान की हिमायत से जुड़ी हुई है, क्योंकि पाकिस्तान भी इस इकदाम का एक हिस्सा है। लिहाजा इसकी खलाई तामीर बशमूल मुल्क की खुशहाली भी चीन के लिए एक साजगार हिमायत है। लिहाजा हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि मुल्क के लिए बेहतरीन मसनूआत फराहम करें। पाकिस्तानी प्रोजेक्ट टीम के बहुत से इंजीनियर्स को बैरून मुल्क तालीम हासिल करने का तजर्बा है, लिहाजा उनके अहलकारों का मयार भी बहुत बुलंद है। उन्होंने अपना सामान तैयार किया है।
اپنا اسمبلنگ پلانٹ بنایا ہے جس میں کچھ بڑے تجرباتی سامان بھی شامل ہیں جو متعلقہ ٹیسٹوں میں کامیاب رہے۔ مجھے یقین ہے کہ مستقبل میں وہ بہتر مصنوعات تیار کریں گے، جتنی جلدی ممکن ہو آزادانہ طور پر بڑے سیٹلائٹ تیار کریں گے، پاکستان کے خلائی شعبے کی آزادانہ ترقی کو حاصل کرنے کے لیے اپنا حصہ ڈالیں گے اور پاکستانی عوام کے لیے بہتر خدمات فراہم کریں گے۔ ناظرین، پروگرام پاک چائنا ایکسپریس دیکھنے کا بہت شکریہ۔ اگلے ہفتے ملیں گے۔ خدا حافظ۔